جوہری توانائی کا پہلا سربراہی اجلاس آج برسلز میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سربراہی میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اجلاس میں شریک ممالک کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ اجلاس میں ایٹمی توانائی پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت، گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس۔ کے حکام نے وزیر داخلہ کو یونان کشتی حادثے کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اس سانحے میں ملوث تمام عناصر کو فکری کردار تک جانا ہوگا: محسن نقوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے چینی سفیر جانگ زیلونگ کی ملاقات۔ سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فلم اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی اتفاق۔ گوادر میں جی پی اے کمپلیکس پر بی ایل اے کا حملہ ناکام، تمام 8 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے حملہ ناکام بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی بہار خان اور سپاہی عمران علی شہید۔ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین۔ افواج پاکستان کی افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز کے خلاف کارروائی پر عوامی رد عمل۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاک فوج اسے منہ توڑ جواب دے گی۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک وطن کا دفاع کیا۔ عوام کی رائے۔ جنگلات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد جنگلات کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ حکومت ملک میں جنگلات کے تحفظ اور بہتری کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ صوبائی حکومتیں، سول سوسائٹی اور شہری گرین پاکستان کی جدوجہد میں حکومت کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عالمی دن پر پیغام۔ یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں۔ چاق و چوبند دستوں کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں تکمیلی مراحل میں داخل۔ عوام کی بڑی تعداد نے پریڈ گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرسل دیکھی۔ پاکستان ہمیشہ آگے بڑھے گا اور پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ خصوصی پریڈ کو دیکھنے والے شائقین کا اظہار خیال۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کا فضائی حملہ، 2 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے کے علاقوں بیت الحم اور نور شمس پناہ گزین کیمپ میں صہیونی فورسز کے رات بھر چھاپے، متعدد فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں الشفا اسپتال کا محاصرہ جاری، مریضوں سمیت سینکڑوں افراد اندر پھنس گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مختلف آپشنز پر بات چیت، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران اور تاجکستان کا افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش۔ افغانستان میں انسانی اسمگلنگ، منشیات فروشی اور دیگر غیر قانونی جرائم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ایران اور تاجکستان نے افغانستان سے منشیات کی اسمگلنگ پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے، جو طالبان کی منشیات کے خلاف جنگ کے دعوے کی نفی ہیں۔ مودی سرکار کے انتہا پسندوں کے نمازیوں پر حملے۔ گجرات یونیورسٹی کے ہاسٹل میں نماز کی ادائیگی میں مصروف
غیر ملکی طلباء پر ہندوتوا نظریے کے پیروکاروں کا حملہ، بی جے پی کے گنڈوں نے لاٹھیوں اور چاقوؤں سے لیس ہو کر ہاسٹل پر دھاوا بولا، مسلمان طلباء کو زد و کوب کیا اور کمروں میں توڑ پھوڑ کی، تشدد سے 5 طلباء شدید زخمی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مدد سے شمسی توانائی کے نئے منصوبے، مظفر گڑھ میں منصوبے کے لیے 2553 ایکڑ زمین حاصل کر لی گئی۔ این ٹی ڈی سی لیا اور جھنگ میں شمسی توانائی کے 2 دوسرے منصوبوں کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے کوشاں، منصوبوں کی تعمیر سے سسٹم میں 2400 میگا واٹ شمسی توانائی کا اضافہ ہوگا، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ لکی مروت کے اساتذہ اور طلباء کا کوہاٹ گیریزن اور کیڈٹ کالج کوہاٹ کا دورہ، اساتذہ اور طلباء کو پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور زیر تعلیم کیڈٹس کے تربیتی اور تعلیمی امور سے آگاہ کیا گیا۔ طلباء کو کیڈٹ کالج کے ہاؤسز اور لائبریری کا بھی دورہ کرایا گیا۔ اساتذہ اور طلباء کا پاک فوج کی بے پناہ قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر راؤنڈ 2، پاکستان اور اردن آج جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں مد مقابل، میچ دن 2 بجے سے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ 26 مارچ کو اردن میں ہوگا۔ اور جنوبی افریقہ میں 7 مراحل پر مشتمل دشوار گزار اور ایڈونچر سے بھرپور ماؤنٹین بائیک ریس، جرمنی کے آندریاس سیوول اور سوئٹزرلینڈ کے مارک سوٹرمین نے کیپ ایپک ریس کا تیسرا مرحلہ جیت لیا۔ خواتین میں نیدرلینڈز کی اینی ترپسٹرا اور ان کی سوئس جوڑی دار نکول کولر نے تیسرا مرحلہ جیتنے ہوئے اپنی برتری میں مزید اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جوہری توانائی کا پہلا سربراہی اجلاس آج سے برسلز میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شریک ممالک کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اجلاس میں ایٹمی توانائی پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اقتصادی سفارتکاری پاکستان کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں افسران سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو روایتی سفارتکاری کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک ہمارے مشن سرمایہ کاری کو پاکستان لانے کی طرف متوجہ مرکوز ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان قدرتی اور اعلیٰ معیار کے انسانی وسائل سے مالا مال ہے۔ ملک میں ایک عظیم معیشت بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، بشرطے کہ بیرونی خسارہ کم کرنے میں مربوط اقدامات کیے جائیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مؤثر انداز میں وسائل کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ موجودہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر شراکت داروں کے ساتھ مشترکہ تعاون کے لیے پاکستان کوشاں ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار آج برسلز میں پہلی نیوکلیئر سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ وزیر خارجہ سربراہی اجلاس میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال پر روشنی ڈالیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ مختلف ممالک کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان غزہ میں ہسپتالوں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ معصوم بچوں، بے گناہ افراد، شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی 14 سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر چکا ہے، جس کی پاکستان مذمت کرتا ہے۔ مسئلے کے حل تک پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔
वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क देते हुए बिजली और गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। क्रैक डाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस सान्हे में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि इस नासूर का सत्तेबाब मुमकिन हो सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा मज़ीद तंग करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तानी रुपये की कदर में बेहतरी आई है। इजलास में FIA एहलकारों की ज़ेर इल्तवा तरक्कियों पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर इल्तवा प्रमोशन केसेस को 1 माह की मुकर्रर मुद्दत में निपटाने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर दाखिला के गुज़श्ता हफ्ते FIA हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर जारी अहकामात पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों की तरफ से बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जिसे चौकन्ना सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। ऑपरेशन में कलअदम BLA के तमाम 8 हमलावर मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शहीद हो गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सिपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं और बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबोटाज करने की दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर बेटों की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। मादे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों की जानिब से किए जाने वाले हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हुए कहा है कि हमला आवरों के खिलाफ बहादुरी और पेशावराना महारत पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जानों की कीमती नजराने पेश करके अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बनाया और हमला आवरों को हलाक किया, जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि गवादर बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान की माशी तरक्की के अमन को मुतासर करना चाहते हैं, लेकिन अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के खिलाफ तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। वतन के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुजात और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले कौम के बेटों को सलाम पेश करते हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर ममलकत ने फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहत। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर फोर्सेस ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। सदर ममलकत ने कहा कि दहशतगर्द से सख्ती से निपटा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई को अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की काविशों से मुतालिक अवाम का कहना है कि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखेगा तो पाक फौज उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम पाक फौज के इक़दामात के साथ खड़े हैं। हम वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। तो भी दहशतगर्द मुल्क की तरफ के टेढ़ी आंख उठा के देगा, पाक फौज उनके खिलाफ नबरदाश्त होगी। हम पाक फौज के इक़दाम के साथ खड़े हैं। इसके पीछे जो है मोदी हुकूमत और उनका हाथ है। हमारी पाक फौज जो है उसके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि हर एक किस्म का दिफा कर सकती है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शोधा को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इन बुज़दिलों को जो है वो इनके नाजायज़ मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। दहशतगर्द जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाएगा, पाक फौज उसको नहीं छोड़ेगी। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरहद इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इस खत्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान के हम फौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हर ताउन करेंगे, जानी माली जिस्मानी जो भी हो इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। धरती की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है और उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। इंडिया की तरफ से ये प्लान है या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से है, पाकिस्तान आर्मी का ये राइट बनता है कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। पाक फौज से हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर की सरकूबी के लिए एक भरपूर किस्म का
ऑपरेशन किया जाए। फौज जो है ना हमारा पार है, ये एक वेल डिसिप्लिन इदारा है, प्रोफेशनल इदारा है और पाकिस्तान की सरहदातों का हिफाजत वो हर वक्त कर सकते हैं और वो ने कर लिया है, वो साबित कर चुका है। तो आज हमारी फौज ना होती तो हम कहाँ होते, वो दिन रात जाकर हमें अच्छी नींद सुलाते हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जो अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करके खत्ते की जो अमन है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका गठजोड़ मोदी सरकार से मिलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है ना पाक फौज के साथ खड़े हैं। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम फौज हमारे हर वक्त दिफा के लिए मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात। NTTP वालों को भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तबाही में जिन लोगों की भी हाथ है उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, चाहे वो जो मुल्क है। मोदी सरकार की जो गठजोड़ है और इसकी जो दहशतगर्दी है मिलजुल के, वो पूरे खत्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो पाक फौज ने इकदाम किया है, जो दहशतगर्दियों को नस्तनबूद किया है, हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि जंगलात कुर्राए अर्ज़ का एक अजीम असासा हैं जो कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पैगाम में कहा कि जंगलात की हिफाजत और बका के लिए पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा 5% से भी कम है, जबकि मुल्क से तकरीबन 1.5% जंगलात हर साल ख़त्म हो रहे हैं। जंगलात की कमी से हयातियाती तनव्वुर, माहौलियात और ज़राअत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाला मुल्क है और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की फ़ौरी ज़रूरत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ बहैसियत कौम हमारी बका के लिए नागुज़ीर है। नून लीग ने 2016 में ग्रीन पाकिस्तान का आगाज़ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए किया था। हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान के अगले मरहले का आगाज़ कर रही है, जिसका मकसद जंगलात के रकबे को बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने के लिए अज़्म का इज़हार करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतें, सिविल सोसाइटी और तमाम शहरी ग्रीन पाकिस्तान की जद्दोजहद और जंगलात की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें और हुकूमत का साथ दें। खुशहाल कल के लिए आज पौधे लगाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने CPEC को पाकिस्तान की माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग-ए-मील करार देते हुए कहा है कि CPEC की सूरत में करीबी और पायदार शराकतदारी खित्ते के वसी तर मफाद में है। ये बात उन्होंने चीनी सफ़ीर जांग जी डोंग से गुफ्तगू में कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में CPEC, मीडिया और फिल्म के शोबे में जारी ताउन और CPEC से मुतालिक जाली खबरों की रोकथाम के लिए चीन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कॉरिडोर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि CPEC इलाक़ाई राबतों का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, वसी एशियाई जमहूरिया और ख़ित्ते पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने गुज़िश्ता साल पैलेस म्यूज़ियम में गंधारा बुद्धिस्ट नुमाइश का मुश्तरका तौर पर एहतमाम भी किया। मुलाकात में APP और चाइना मीडिया ग्रुप के दरमियान तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कहा गया कि APP और जिन्वा न्यूज़ एजेंसी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर काम जारी है। मुलाकात में CGTN और PTV के दरमियान सफरी दस्तावेज़ की मुश्तरका प्रोडक्शन के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा है कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का साबिक चेयरमैन PTI का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए डोनाल्ड लू ने कहा कि उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर के इल्ज़ाम को झूठ करार दे चुके हैं। These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process.
पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सेनेट की 7 जनरल नशस्तों पर मुसद्दिक मलिक, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, हामिद खान, अहद चीमा और उमर सरफराज चीमा समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 21 मार्च तक अपीलेट ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। सिंध में सेनेट की 12 नशस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाने वाले कागजात नामजदगी में से 1 मुस्तरद हुआ, जबकि 34 मंजूर कर लिए गए। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद इब्तदाई फहरिस्त आपिज़ा कर दी गई। MQM पाकिस्तान के रुकन नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान के मुताबिक सूबे में मजमूई तौर पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसमें से 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद जबकि 30 के कागजात मंजूर किए गए। 7 जनरल नशस्तों पर मजमूई तौर पर 25 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे, जिनमें से 9 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए थे। ख़वातीन की नशस्तों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 6 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर जबकि एक मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर जबकि 2 के मुस्तरद किए गए। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ 5 इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। सेनेट की खाली नशस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सदर ममलूकत ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सिफारिशात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटा दिया है। साबिक जज को ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाने पर रवा साल 10 जनवरी से मनसब से हटाया गया है। वजारत कानून ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों की खुसूसी परेड की तैयारियां तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मुसल्लह अफवाज की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए बड़ी तादाद में आवाम ने परेड ग्राउंड का रुख किया। खुसूसी परेड देखने वाले शायकीन का कहना था कि यहाँ पे आने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि हम मजबूत हाथों में हैं। पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बहुत डिफरेंट है, मैं फर्स्ट टाइम देखा पाकिस्तान में परेड। काफी इमोशनल और हार्ट टचिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिसिप्लिन है, क्या जज्बा है, यहाँ आके पूरा पाकिस्तान नजर आता है। और यहाँ पे आने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम एक मजबूत हाथों में, हमारी फोर्सेस हमेशा हमारी हिफाजत के लिए तैयार खड़ी हैं। हम तमाम अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपना खून दे के इस मुल्क को सलामत रखा हुआ है। मेरी बेटी अस्मा रज़ाक जो फौज में है, ये मेरी बेटी है। क्या ये इस तरह की हज़ारों बेटियां, हमारे बेटे इस मुल्क के लिए जो हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी आवाम से गुजारिश करूंगा कि लव दी कंट्री, लव दी कंट्री, लव दी कंट्री, यही हमारा जज्बा होना चाहिए। मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पूरे इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होगा। और समंदर पार पाकिस्तानियों ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम पाकिस्तान की तैयारियां अपने उरूज पर हैं और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत में सरशार हैं। पाकिस्तानी जहां भी रहें, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और ये जज्बा हमारे एहसास और हमारे बुजुर्गों की मीरास है। वतन अजीज़ से अपनी वालिहाना अकीदत और जज्बात का इजहार करते हुए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का कहना है कि ये सच है कि हम दियार गैर में पाक वतन से कोसों दूर हैं, मगर ये भी सच है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारे सीनों में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है और हमारी सांसों में मचलते जज्बात का नाम है पाकिस्तान।
बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, जहां गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सिहोनी फ़ौज के इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल्लहम और तुलकरम शहर में सिहोनी फोर्सेस ने छापे मारकर मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में भी सिहोनी बर्बरियत उरूज पर है। सिहोनी फ़ौज ने गजा शहर में ज़ेर मुहासरा शिफा हस्पताल में एक इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी मुहासरे में अब तक 90 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 160 को हिरासत में लिया जा चुका है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि सिहोनी बर्बरियत में मज़ीद 104 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 162 ज़ख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 31,923 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 74,096 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा के मुतअद्दिद इलाकों में कहत का ख़तरा मंडला रहा है। रसाई में रुकावटों के बायस इमदाद की बरवक्त तरसील में संगीन मसाइल दरपेश हैं। पहुँचने वाली इमदाद ज़रूरियात के मुकाबले में बहुत कम है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंगबंदी ही गजा में ज़मीनी रास्ते से इमदाद पहुँचाने का मौजूद तरीन तरीका है। ये फ़ज़ाई और समुद्री रास्ते से कहीं ज़्यादा मौसर और फ़ायदेमंद है। सऊदी अरब ने गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के लिए $4 करोड़ फराहम करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जद्दा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें गजा में जंगबंदी में पहुँचने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। इससे कबल जद्दा पहुँचने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हम मनसब के दरमियान भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में बताया है कि गजा जंग में खात्मा चाहते हैं ताकि गजा की पट्टी से मुस्तकबिल पर काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अमरीका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज काहिरा में मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी के हवाले से होने वाले इस अहम इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात और फ़लस्तीनी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। ईरान और ताजिकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में कोई भी मरबूत निज़ाम न होने की वजह से ये मुल्क मनशियात फरोशी का गढ़ रहा है। हाल ही में ईरान और ताजिकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं, जो तालिबान की मनशियात के खिलाफ जंग के दावे की नफ़ी है। तुलू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ताजिकिस्तान के इंसदाद मनशियात के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम के इजलास में अफ़गानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग और काश्त पर तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान की ड्रग कंट्रोल एजेंसी के सरबराह ने बताया है कि शुमाली अफगानिस्तान से मनशियात की भारी मिकदार वस्ती एशियाई ममालिक और यूरोपीय यूनियन में स्मगल की जा रही है। वस्ती एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरहदों के लिए ख़तरा बतदरीज बढ़ रहा है, क्योंकि मेथ और अफ्यून की स्मगलिंग पड़ोसी ममालिक में बढ़ रही है। ईरान के ड्रग कंट्रोल के सेक्रेटरी जनरल ने भी इजलास में दावा किया कि गुज़िश्ता 5 साल में अफगानिस्तान में पैदा होने वाली 4,450 टन मनशियात ईरान में पकड़ी गई हैं। अफगानिस्तान से आने वाली इस मनशियात को रोकने के लिए मेरे कई साथियों को जान तक की कुर्बानी देना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्यून दुनिया भर में इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का एक अहम जरिया है। अफगानिस्तान में तैयार होने वाली अफ्यून और मेथ की स्मगलिंग से दुनिया के बहुत से खित्तों में लोगों की सेहत और बहबूद को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से शमसी तवानाई के नए मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ने मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट के शमसी तवानाई मनसूबे के लिए 2553 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली है। शमसी तवानाई का मनसूबा महंगे ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार कम करने में मदद देगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ज़िला लिया में 1200 मेगावाट, ज़िला जंग में 600 मेगावाट शमसी तवानाई के 2 दीगर मनसूबों के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए भी कोशा हैं। इन मनसूबों की तकमील से निज़ाम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा तवानाई की तलब को पूरा करेगा। नाज़रीन, माह रमज़ान में मुखय्यर हज़रात और निजी तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन की तकसीम का अमल जारी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान के दौरान मुखय्यर हज़रात और निजी तंजीमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन की तकसीम का अमल मुसलमानों के बेहतरीन अमल में से एक है। मुफ्त राशन की तकसीम का मकसद मुस्तहिक अफराद को रोज़ा रखने, अफ्तार करने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के मौके की फरहमी है। वो लोग जो भूख को तरसते हैं, जिनके मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि वो खा पी नहीं सकते, हम उनको 15 अशियाए ज़रूरत पर मुश्तमिल
ये पैकेज देते हैं। रमज़ान में जो है वो हम 200 राशन तकसीम करेंगे। वैसे सारा साल हम जो है वो महीने में एक दफ़ा राशन तकसीम करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि मुकम्मल हम जो है ना ये यकीन हासिल करते हैं कि ये तमाम लोग ना मुस्तहिक हों। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि हर साल ये लोगों को इमदाद करते रहे माह रमज़ान के लिए। मुझे हर महीने यहाँ से राशन मिलता है। मेरी एक बच्ची माजूर है पढ़ी, शोहर मेरे जो हैं वो मजदूरी करते हैं। हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दामात से रियासत और नादार और गरीब आवाम के दरमियान रिश्ता और इत्माद मुस्तहकम होता है, जबकि निजी सतह पर नेकी के इस इक़दाम से दरअसल वो इस्लामी तालीमात और रवायत के मुताबिक ज़कात और खैरात के जरिए अपना माल हलाल कर रहे होते हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला ननकाना साहिब के मुस्तहिक घरानों में राशन बैग्स उनकी दहलीज पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है और अब तक 60,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन बैग्स पहुंचाए जा चुके हैं। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे जावेद अहमद मौविया से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ननकाना साहब में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। जिले भर में 91,500 मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन बैग की फराहमी के लिए 57 टीमें जो है वो फील्ड में काम कर रही हैं। तमाम मुस्तहिक अफराद को डिजिटल तरीके से मुकम्मल तस्दीक के बाद ही राशन बैग जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। पहले एक टीम स्क्रीनिंग करती है, वो एलिजिबल बंदे इकट्ठे कर लेती है, उसके बाद हम उसके डोर स्टेप पे जाके अपना जो राशन है वो तकसीम कर रहे हैं। घर घर जाके ना जो डिजर्विंग पीपल होते हैं उनके कार्ड को स्कैन करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना है और जिनके कार्ड पे राशन आया होता है उनको हमें डिलीवर करना होता है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद समेत मुख्तलिफ ज़िली अफसरान रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में जाकर रमज़ान पैकेज की तकसीम के अमल में शफाफियत का जो है वो खुद जायजा ले रहे हैं, जबकि राशन बैग की पैकिंग के अमल की जो है वो मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि बेहतरीन और मियारी अशिया ही मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जा सके। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बेहतरीन इकदाम है जो है वो राजदारी में रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है कि एक गरीब जो है उसकी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं किया। राशन बैग्स वसूल करने वाले मुस्तहिक अफराद ने पहली मरतबा बावकार और आसान तरीन तरीके से रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ अशिया खुदोनोश की फराहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान पैकेज की फराहमी का काम जो है वो चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद आपका। नाज़रीन, ज़िला ओकाड़ा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,45,000 से ज़ायद मुस्तहिक ख़वातीन को 10,500 रुपये की अदायगी की जा रही है। ये अदायगियाँ जनवरी ता मार्च 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अशरफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला ओकाड़ा की 1,45,079 रजिस्टर्ड ख़वातीन को 10,500 रुपये की रकम की अदायगी का अमल जारी है। BISP के तहत ज़िला भर की मुस्तहिक ख़वातीन को जनवरी से मार्च तक 3 माह की एक साथ की अदायगी की जा रही है। मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया ने मैनू पूरा 10,500 रुपया मिला, मैं कोई मेरा पैसा नहीं कटिया। कार्ड जमा करवाया और सन 10,500 रुपया पूरा उन्होंने दे दिता है। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तहिक ख़वातीन को 10,500 रुपये की अदायगी के लिए तहसील उकाड़ा में 51, तहसील दीपालपुर में 81 और तहसील रिनाला खुर्द में 19 सेंटर बनाए गए हैं। रकम की अदायगी के लिए बनाए गए सेंटरों पर शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सेंटरों की मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी है। शफाफियत की बुनियाद पर लोगों को तक उनकी इमदाद को पहुँचाया जा रहा है। अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है या आए तो हम उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। मुस्तहिक ख़वातीन को रकम की अदायगी का अमल 100% अदायगी मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। BISP हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा फलाही प्रोग्राम है जो मुल्क भर के इंतहाई गरीब और नादार ख़ानदानों को समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन बैग्स पहुँचाने का सिलसिला जारी है। तफसील शेयर कर रही हैं वर्दा सलीम। 30 अरब के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत पहली मरतबा मुस्तहिक अफराद को अशय खुर्दनोश उनके दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। पैकेज में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, चावल, बेसन, घी और दीगर अशिया शामिल हैं। प्रोग्राम के तहत अब तक लाहौर में 2,60,000 से जायद, जबकि लाहौर डिवीजन में 5,75,366 मुस्तहिकीन को रमजान निगहबान पैकेज उनके दहलीज पर फराहम कर दिए गए हैं। उनकी दहलीज पर जाके हम उनको जो उनका हक है वो हम पहुँचा रहे हैं। उस हवाले से
से कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी की भी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो। किसी किस्म की कोई शिकायत होती है किसी को तो हमारे नंबर्स अवेलेबल है, कंट्रोल रूम्स के नंबर्स अवेलेबल है, हमारी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं। ननकाना साहब में 61,512 और कसूर में 1,15,936 घरानों तक रमजान नेगेबान पैकेज पहुँचा दिया गया है। जिला शेखुपुरा में 2,32,000 मुस्तहकीन में से 1,32,000 घरानों तक राशन बैग पहुँचाए जा चुके हैं। गुजरांवाला, उकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन समेत सूबे के दीगर इजला में भी रमजान नेगेबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस सारी तकसीम को देखने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है, जहां तकसीम के अमल की निगरानी की जा रही है। रिलीफ पैकेज की तरसील रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लक्की मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और बच्चों ने कोहाट गैरिजन और कैडेट कॉलेज कोहाट का दौरा किया। असातिज़ा और बच्चों को पाक फ़ौज की पेशा वराना उमूर और खुसूसन कैडेट कॉलेज में ज़ेर तालीम कैडेट्स की तरबियती और तालीमी उमूर से आगाह किया गया। बच्चों को कैडेट कॉलेज के हाउसेज और लाइब्रेरी का भी दौरा करवाया गया। असातिज़ा और बच्चों ने पाक फ़ौज की बेपनाह कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इस अहम दौरे के इनेकाद पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दौरे से उन्हें पाकिस्तान के अहम इदारों के बारे में बहुत मालूमात हासिल हुई हैं। नौजवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत का साथ देते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। रुख करते हैं ज़िला जहलुम का, जहां अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान भरपूर अंदाज से जारी है। निगहबान रमज़ान पैकेज से ज़िला भर में 52,553 घराने मुस्तफ़ीद होंगे। तफसील बताएंगे जहलुम से नईम अख्तर भट्टी। पंजाब भर की तरह ज़िला जहलम की चारों तहसीलों में रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज ज़िले इंतजामिया के अमले के साथ तलबा और तलबात भी आवाम की दहलीज पर राशन बैग्स पहुँचा रहे हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में अब तक 46,257 रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में राशन बैग्स दिए गए हैं। इस वक्त तक तहसील जहलम के अंदर 14,137 जो है ना वो बैग डिलीवर किए जा चुके हैं और इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हर वक्त मौजूद है। जिला भर में 52,553 घराने निगहबान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। जिला भर में रजिस्टर्ड घरानों को राशन बैग की तकसीम के लिए 52 पॉइंट्स और 465 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि निगहबान रमजान पैकेज में 10 किलो आटे का थाला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिए जा रहे हैं। निगहबान रमजान पैकेज की शफायत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों को फराहम किए जाने पर राशन बैग पर QR कोड भी जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमजान पैकेज में मुफ्त राशन की फराहमी हुकूमत का एक इनकलाबी इक़दाम है, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जहलम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कैस्को की जानिब से बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोयटा, पशीन, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान ऑपरेशन सर्कल में कैस्को हुकाम सख्ती से अमल पैरा हैं। खुसूसी मुहिम के दौरान गुज़िश्ता रोज़ बिजली चोरों को 38,489 डिटेक्शन जुर्माने के मद में चार्ज किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 20,88,000 रुपये बनती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में डिटेक्शन और जुर्माने की मद में बिजली चोरों से तकरीबन 20,61,000 रुपये वसूल किए जा चुके हैं। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले 7,000 बच्चों ने कोहाट गैरिजन और कैडेट कॉलेज कोहाट का दौरा किया। इस बारे में हम आपको आगाह भी कर चुके हैं। रुख करते हैं कि भारत का जहां अक़लियतों पर पहले से जारी जुल्म सितम इंतहा पसंद मोदी सरकार के आने के बाद अब बर्बरियत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज की अदायगी में मसरूफ़ गैर मुल्की तलबा पर हिंदुत्व नज़री के पैरोकारों ने हमला करके 5 तलबा को शदीद ज़ख्मी कर दिया। CNN के मुताबिक श्रीलंका और ताजिकिस्तान के तलबा को हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मुल्की तलबा का कहना था कि 250 से ज़ायद BJP के शरपसंदों ने जय श्री राम का नारा लगाकर नमाज के दौरान हम पर हमला कर दिया और हॉस्टल की अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। have been existing Muslims here in India, but none of them talks about this. Why only the African students? Now they are breaking down the bicycles, the bikes, everything is being demolished down. These guys have been hiding the racism and all that. Today they have really shown their true color. There's no one, the police are not responding. Look, this is how they attack. जब घटना बन रही थी उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई। पुलिस की हाजिरी में भी ये जो असांजित तत्व जो थे वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की बजाय उनको वहां से जाने दिया।
यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर अलग नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाना, स्वतंत्र रूप से जगह बनाना, वहां उर्दू में लिखकर देशद्रोही प्रवृत्ति करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, उस बात से हिंदू समाज को दिक्कत है। यौम पाकिस्तान से कबल भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और दीगर इलाकों में एक मरतबा फिर मुबारकबाद के पैगामात वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सतूनों, खम्बों और दीवारों पर चस्पा पोस्टरों में बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना का मारूफ फरमान कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, मारूफ हुर्रियत कायद शहीद सैयद अली गिलानी का मशहूर नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है दर्ज है। पोस्टर में मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल, बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी मौजूद हैं। पोस्टर में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोग गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी चाहते हैं। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। कश्मीरी अपने हक की खुद इरादियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पोस्टर फेसबुक और ट्विटर समेत समाजी राबतों की दीगर साइटों पर भी अपलोड किए गए हैं। हुजूर सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत थीं, जबकि अरब में निहायत बाफजीलत खातून समझी जाती थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के यौम वफ़ात 10 रमज़ानुल मुबारक है। तफसील ज़िशान अहमद से। इस्लाम के नूर से मुशर्रफ होने वाली पहली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा को आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ोजा होने का एजाज़ हासिल है। इस्लाम से कबल मक्का में हज़रत खदीजतुल कुबरा ताहिरा और सैयदतुल निसा कुरैश के नाम से जानी जाती थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपनी जहानत और अक्ल और दानिश से तिजारत को फ़रोग़ दिया और अरब की अमीर तरीन शख्सियत बनकर उभरी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के कहने पर हज़रत खदीजतुल कुबरा की तिजारत में शिरकत की और हज़रत खदीजा को काफ़ी मुनाफा कमा कर दिया। इस तिजारती सफ़र में हज़रत खदीजा ने अपने गुलाम मयसरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था, जिन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और रास्तबाजी बयान की। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से मुतासिर होकर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया। ये वो ज़ौजा मुहतरमा है उम्मुल मोमिनीन है कि जिनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई। 4 साहबजादियाँ हुई, हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुक़ैया और हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन। और अल्लाह पाक ने इनको क़ब्ल इस्लाम भी बहुत सखी बनाया था। मलिकतुल अरब मशहूर थी, पूरे एक इदारा चलाती थी जहाँ मसाकीन की किफ़ालत होती थी। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के मनसब पर फाइज किया गया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून करार पाई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सारा सरमाया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दे दिया ताकि इस्लाम के काम आए। ये अजीम खातून नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ान मुबारक को मक्का मुकर्रमा में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुदा की कसम मेरे लिए परवरदिगार ने खदीजा से बेहतर किसी को नसीब ना किया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और सिंध जिसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, बरसगीर का वो खित्ता है जहाँ सबसे पहले इस्लाम की किरणें पहुँची। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से राजा दाहिर की हुकूमत ख़त्म की। 10 रमज़ान सिंध की फ़तह का दिन है जिसे यौम बाबुल इस्लाम के तौर पर मनाया जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हसन नासिर। 8वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सरंदीप के राजा ने एक बहरी जहाज़ मुस्लिम सल्तनत में इराक़ के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ रवाना किया था, जिसमें अरब ताजरों की बेवाएँ, यतीम बच्चे, सामान तिजारत और बाज़ मुसलमान सवार थे जो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिजाज मुक़द्दस जा रहे थे। इस जहाज़ को सिंध के साहिली इलाकों के डाकुओं ने लूट लिया और इनमें सवार यतीम बच्चों और ख़वातीन को भी कैद कर लिया। इन डाकुओं को यहाँ के जाबिर हाकिम राजा दाहिर की सरपरस्ती हासिल थी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई और ख़वातीन और बच्चों की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया, जिसे राजा दाहिर ने रद्द कर दिया। राजा दाहिर के रवैये ने हुज्जाज को सिंध की जानिब से फौजी मुहिम भेजने पर मजबूर किया। इसने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की फतह के लिए मुंतखब किया। अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार पाक व हिंद के इलाके सिंध में कदम रखा और मुख्तसर अरसे में अपनी जुर्रत, फरासत, अस्करी महारत व बहादुरी, रवादारी, हुस्न सलूक और हिकमत व दानिश से यहाँ आबाद गैर मुस्लिमों को मुतासर करके इनके सरों को नहीं बल्कि दिलों को फतह किया।
मोहम्मद बिन कासिम ने न सिर्फ राजा दाहिर को शिकस्त देकर इसकी जाबिर हुकूमत का खात्मा किया बल्कि आगे बढ़कर मुल्तान को भी फतह किया। एक बेटी के खत पे आते हैं और इन्होंने आकर सिंध के अंदर क्या दिया, आज हमारा पूरा सिंध, ये पूरी धरती आज जो कलमा पढ़ती है, तौहीद और रिसालत का प्रचार करती है, अल्लाह के सामने हमारे सर झुकते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत पे हम फ़ख्र करते हैं, ये उसी मोहम्मद बिन कासिम की बरकत है। गैर मुस्लिमों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया, मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी दी गई, ब्राह्मणों और बुद्ध मत के पुजारियों के साथ मिसाली सलूक किया गया, जिससे मुतासर होकर बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम की हुक्मरानी का आगाज़ 10 रमज़ान मुबारक को हुआ, जिसकी वजह से इसे यौम बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोठोहार और इस्लामाबाद में शाम और रात के औकात में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे छोर की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में 39, लसबेला, टंडूजाम और शहीद बेनज़ीराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के ग्रुप जी में पाकिस्तान और उर्दन की टीमें आज इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में होने वाला मुकाबला दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत ईसा सलमान करेंगे। फीफा की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 195 और उर्दन 17वें नंबर पर है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 26 मार्च को उर्दन में होगा। ग्रुप जी में सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, उर्दन और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के हाथों 1 के मुकाबले में 6 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा था। दूसरे राउंड में मजमूई तौर पर 36 टीमों को 9 ग्रुप्स में शामिल किया गया है। हर ग्रुप से 2 टीमें तीसरे राउंड में जगह बनाएंगी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा है कि उर्दन की टीम मजबूत है, लेकिन हम अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान का सफ़र आसान नहीं। हम एक टीम तश्कील दे रहे हैं। इस दौरान हार और जीत को कबूल करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लीग की ज़रूरत है। लीग होगी तो तजुर्बा मिलेगा और नए खिलाड़ी सामने आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इंटर कॉलेजिएट रमज़ान T20 कप का मेला सजेगा। इवेंट का आगाज़ कल से लाहौर में होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इंटर कॉलेजिएट रमज़ान T20 कप के इनेकाद की मंजूरी दे दी। टूर्नामेंट 3 शहरों लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इंटर कॉलेजिएट रमज़ान T20 कप में 30 कॉलेजेस हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद और कराची में मैचेस 23 मार्च से शुरू होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि इंटर कॉलेजिएट रमज़ान T20 कप से निचली सतह पर टैलेंट सामने आएगा। उन्होंने कहा कि खेल के फ़रोग के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। Ramzan Pakistan